اب ہو رہا ہے. بہت شرارتیں ہو چکی ہے. 4-5 سال سے میں یہاں جھیل رہا ہوں بڑی خاموشی کے ساتھ, اور کئی وہابیوں کو میں نے ان کے انجام وقت تک پہنچا ہے. یہاں آپ نے دیکھا یہاں نوجوانوں کا جوش. چند ہفتہ پہلے یہ جوش و خروش, یہ ایمانی جذبہ نظر نہیں آ رہا تھا. دھیرے دھیرے وہابیت کا تاریخ اور خوفناک سایہ پھیلتا چلا جا رہا تھا. لیکن آج علماء اہل سنت کے خلوص کی یہ برکت ہے, چمک ہے کہ آج ہر طرح کی تاریکی اور ظلمت چھٹ چکی ہے, اور اہل سنت کا پورا جہاز آج آپ دیکھ رہے ہیں پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. آج میرے خیال میں اب گزر گیا ہے نا, اس لیے کہ وہابیوں کے تابوت میں آخری چیز اب ٹھوکی جا چکی ہے. اب یہ سب نمائش کرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں رہ گئی. یہ بہت پیچھے کی چیزیں رہ گئی ہیں. بچوں اور نوجوانوں کا جوش آپ نے دیکھا. کئی بار وہابیوں کو موقع دیا گیا. یہ کیا جناب, گاؤں کے لوگوں نے کہا یہاں آؤ گے تو تمہیں سپورٹ نہیں ملے گا, تمہیں مدد نہیں دی جائے گی, اور گاؤں کے لوگ اس میں شریک نہیں ہوں گے. کیا ہوا جناب, فورس لے کر کے آ گئے. باہر سے گاڑیاں لگا دی گئی, بسیں چل کے آئی. باہر کے لوگ یہاں سے, پڑاسی کے لوگ چل کے یہاں پہ آئے. مقرر باہر کے آئے. اچھا, سب باہر سے, گاؤں کا کوئی آدمی نہیں آیا. یہ جلسہ جناب کس کے لیے کیا گیا ہے؟ گاؤں والوں کے لیے کیا گیا ہے, علاقے والوں کے لیے کیا گیا ہے, بہراوا کٹب والوں کے لیے کیا گیا ہے. اگر وہ آ جائیں گے تو وہ فائدہ اس سے اٹھائیں گے, یہ ہے. لیکن یہ کس کے لیے سجایا گیا ہے؟ آپ کے لیے. گاؤں کا کوئی آدمی سپورٹ نہیں کر رہا ہے تو تم آ کر کے یہاں پر چڑھانے کی کوشش کیوں کر رہے ہو, اور شرارت کیوں کر رہے ہو؟ اور جناب فورس لے کر کے آ گئے. اگر سنی مسلمان کہتا ہے یا نبی, تو ظالم شیطان مردود کہتا ہے شرک ہے. اگر کہتا ہے یا غوث المدد, تو وہابی کہتے ہیں یہ شرک ہے. لیکن جب ان پہ مصیبت آتی ہے, انہیں اندازہ لگ گیا کہ رتن گنج کا مسلمان بیدار ہو چکا ہے, اور انہیں اندازہ ہو گیا, یقین ہو گیا کہ آج کی آج ہم پر پٹھا پڑنے والا ہے, تو المدد یا پولیس, المدد یا یہ جناب شرک نہیں ہے. یا نبی المدد شرک ہے, یا غوث المدد شرک ہے, اور یا پولیس المدد یہ جائز ہے. یہ کہاں سے توحید؟ یا پولیس المدد. آج یہاں کے بچوں کا جوش و خروش دیکھ کر کافی مسرت ہوئی. آج یہ بچوں نے ثابت کر دیا ہے کہ تمہیں بڑا موقع دیا گیا, لیکن ہر دم یہ نہ سمجھنا ہم تم کو چھوڑ دیں گے. ہر دم نہ یہ سمجھنا ہم تم کو چھوڑ دیں گے. باطل وہابیوں کی سازش کو توڑ دیں گے. ہر دم نہ یہ سمجھنا ہم تم کو چھوڑ دیں گے, باطل وہابیوں کی سازش کو توڑ دیں گے. اب وقت آ گیا ہے نیپال کی زمین پہ سینے پہ چڑھ کے تیری گردن مروڑ دیں. کیسی شرارت کی گئی جناب. اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی, اتنا آپ فصل لے لے ربے کا وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں. آقا نے فرمایا حدیث کے بعد میں قرآن کی تفسیر اور معنی جو اپنی رائے سے بیان کرے وہ جہنمی ہے. کیا فرمایا ہے آقا نے؟ قرآن کی تفسیر جو اپنے من سے, اپنی رائے سے بیان کرے وہ جہنمی ہے. سرکار نے یہ فرمایا. لیکن کیا کہا, ان شان کا ہو الابتر, اے نبی آپ کے دشمن یہ کیا ہے, دم بریدہ ہے, نسل بریدہ ہے, بے برکت ہے. اور کیا کہا شانی کی تفسیر میں, کہا شانی اس دشمن کو کہتے ہیں جو اپنا بن کے دشمنی کرے. ارے مردود, تجھے شان نزول معلوم ہونی چاہیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم ایک روایت کے مطابق رحلت فرما گئے, انتقال کر گئے.
तो उस वक्त का मरदूद और मलून आसिफ इब्न वाइल ने नबी की बारगाह में कहा था कि तुम तो अबतर हो माअज़ल्लाह, यानी अब सिलसिला खत्म हो गया, अब नस्ल जो है आपकी नहीं चल सकती है, आपका कहीं कोई चर्चा नहीं होगा, कहीं कोई तज़किरा आपका नहीं होगा। उस मलऊन ने ये जुमला कहा था, मरदूद ने ये जुमला कहा था। लेकिन वो क्या फिट करता है कि शानी उसको कहते हैं जो अपना बन करके मुखालफत करे। उसका मतलब ये है कि जितने सुन्नी हैं जो या नबी का नारा लगाते हैं या रसूल का नारा लगाते हैं, इश्क़ नबी का दम भरते हैं, इश्क़ रसूल का प्रचार करते हैं, ये कहते तो हैं कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये नबी के तरीके के खिलाफ है। अच्छा जनाब, क्या कहा? शान ने अका कहा है, शानिया का वाहिद ये कहा है। थोड़ा इल्मी भी मामला आ रहा है, इसको बहुत सारे उलमाए किराम भी यहाँ पे आए हुए हैं। फिर आप देखें कि ये वहाबी जो कहते हैं कि हम बहुत अरबी जानते हैं, बहुत अरबी जानते, बहुत अरबी बेनाज। हमारा एक दफ्तर के मौलवी साहब थे सुन्नी, एक नदवी आया, उलझ गया, उसने कहा कि आप कहते हैं हमारे ये मुनाज़िरे सुन्नत है, हमारे ये मुहद्दिस आज़म और मुहद्दिस कबीर हैं, और हाल ये है कि 2 मिनट अरबी नहीं बोल सकते, अरबी में बात नहीं कर सकते। हमारे सुन्नी मौलवी साहब ने कहा, ये वाकया मैं कहानी लतीफ़ा नहीं बयान कर रहा, हमारे सुन्नी मौलवी साहब ने कहा, अच्छा बताओ तुम अरबी जानते हो? कहा जानता हूँ। कितनी जानते हो? कहा बहुत जानता हूँ। उन्होंने कहा क्या अबू जहल और अबू लहब से भी ज्यादा अरबी जानते हो? अबू लहब और अबू जहल से भी ज्यादा अरबी जानते हो तुम? अरे वो तो अरब में पैदा हुए थे, अरबी उनका ओढ़ना बिछौना था, सब कुछ था। अरबी जानने से कुछ नहीं होता है। और अरबी तुम समझते क्या हो इन खुदामे अहले सुन्नत को, उलमाए अहले सुन्नत को? पालपा के मुनाज़रे में जाना हुआ था, कारी साहब सदारत फरमा रहे हैं, मेरे साथ में यहाँ पे तशरीफ फरमा है। बैरवा पहुंचे, कागजात ने कहा कि आप लोग जा तो रहे हैं मुनाज़रे में, लेकिन याद रखिएगा कि जब ये नदवी, ये सिराजी, ये सलफी जब मुनाज़रा हारने लगते हैं तो अरबी बोलने लगते हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब वो मरदूद मुनाज़रा हारने लगते हैं तो अरबी बोलते हैं। अल्लाह का करम है कि फकीह खातिम अहले सुन्नत ये शर्त ही लगा देगा कि मुनाज़रा अरबी ज़बान में होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अब मैं उसकी अरबी सुना देती है, कुरान की आयत को किस तरह बिगाड़ रहा है। कितने ये बिगड़े लोग हैं, बिगड़े हुए। कहता है एक दुश्मन को कहा गया है जो बड़ा करीबी है, अपना है, आसिफ इब्न वाइल मरदूद है, वो अपना है, नबी का दीवाना था, आशिक था। कह रहा है कि अगर ये होता इन्न शान न कहो अलबतर, हमारे लफ्ज़ पुराने होंगे मैं समझता हूँ, इन्न शान न कहो अलबतर, क्या समझे आपने? देखिए कुरान की आयत से ये खेल कर रहे हैं, मजाक करते हैं कि हम कुरान हदीस का परचम लहराने वाले हैं। जो कुरान हदीस वाले हैं, इन जालिमों को आज देखिए किस दिल में घुसे हुए हैं, कहीं ऐसा पता नहीं चल रहा, कहीं ऐसा पता नहीं चल रहा है। और हमारे नौजवानों ने हालांकि कहा था यहाँ पे 2 साथियों को बांध करके हाई स्टेज पर लाएंगे, लेकिन न जाने लगता है वो ढूंढ रहे होंगे, लगता है पा नहीं रहे हैं। इन्न शान उनका हुआ लगता, इन्न शान ऊना उलमा जो जान रहे हैं ये शान अगर तो शानी जमा सुनना प्लूरल उसका सुनना आता है। अगर जबरदस्ती अगर शान ऊन करते हैं तो आप जानते हैं इन्ना की वजह से वो शान ऊन नहीं होगा, शान ईन होगा, और फिर काफ ज़मीरे खिताब मजमूर मुत्तसिल की वजह से वो शान ई का हो जाएगा। देखिए कितनी तब्दीली हो रही है, कितनी तब्दीली करनी पड़ रही है। और इतना ही नहीं, आगे ओवल अबतर नहीं, उसको भी बदलना पड़ेगा, हुम करना पड़ेगा, और अबतर को अबतरून करना पड़ेगा। इन्ना शान ई का हुमुल अबतरून। अगर कुरान की आयत तो मरदूद बिगाड़ता भी तो इस तरह से, लेकिन उसने बता दिया कि वो कितना अरबी जानता है, कितना अरबी जानता है, कितना जानता है। आज मैं यहीं पर दौनी का रहने वाला हूँ, मैं अंदर का हूँ, अंदर की खबर रखता हूँ। अच्छा भाई तुम अंदर की हो, क्या खबर रखते हो? समझ लो क्या अंदर है, क्या तुम जानते हो, क्या बात है?
जरा बताओ तो किस चीज से तुम बड़ा फायदा उठाए? कहा मैं भी जो है सुन्नी था, शिद्दत के दलदल में फंसा हुआ था। हमारे गांव में जनाब उर्स लगता है, वो तकरीर के चीज यहाँ पे टेप मौजूद है, जो चाहेगा उसको सुन लेगा। कहा हमारे गांव में उर्स लगता था, तो उसमें भीड़ भाड़ में हम भी जाते थे, बड़ा पेश रहते थे और इतनी चप्पला चुराते थे कि साल भर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। तकरीर में उसने कहा है इतनी चप्पलें मारते थे, चुराते थे कि साल भर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने कहा तू था उसी के लायक, कल अल्लाह ताला ने तुझे जूता चोर बनाया था और आज हाल ये है कि तुझे ईमान चोर भी बनाया है और जूता खोर भी बना दिया है। कल जूता चोर था, आज जूता खोर बन गया है। आज मैदान में अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, लेकिन मौलाना कौसर इमाम साहब ने आज कुछ अलग ही कहानी आज सुना दी है कि उसके गांव वाले उसके बारे में न जाने क्या तफसीली बातें करते हैं। उनसे पूछ लीजिएगा जो कुछ भी तब्दील होगी। बहरहाल ये दर्दनाक बातें इसलिए आज बयान करने की जरूरत महसूस हो रही है कि ये शयातीन में आकर के हमले क्यों करते हैं, कचोके क्यों लगाते हैं, इनको वरगलाते क्यों हैं, इनके ईमान से अकीदे से ये खिलवाड़ क्यों करते हैं, इश्क़ रसूल को सीने से निकालने की नापाक सिफारिशें क्यों करते हैं। जब आते हैं छेड़ते हैं तो तकलीफ होती है। अहले सुन्नत का हमेशा से ये तरीका रहा है, ये किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन जब कोई छेड़ देता है तो ये सुन्नत यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर जमे हुए हैं। ये उन जालिमों की अरबी का हाल है। गया सऊदिया में कुछ साल रहा, एजेंट बन गया, दलाल। हमारे पास अगर कोई लेकर के आता किसी बढ़ते हुए नौजवान को कि मानो जरा इसको समझा दीजिए, तो मैं उससे पूछता हूँ, सवाल करता हूँ, अच्छा हुआ बताओ मैं तुमको समझाऊंगा, मेहनत करूंगा, लेकिन ये बताओ कि वाकई तुम जो है नादानी में, गलतफहमी में भटक गए हो कि या तुम एजेंट बना दिए गए हो, दलाल बना दिए गए हो। अगर तुम एजेंट बना दिए गए हो, दलाल बना दिए गए हो, तब तो खत्म वाला कुलूब ही हो गया है, मुहर लग चुकी है, तुम्हारी वापसी नहीं हो सकती है। और अगर गलतफहमी में मुब्तला हो तो इंशाअल्लाह तुमको अंधेरे से उजाले में ला सकता हो। ये इन नादानों को अपनी अरबी पे बड़ा नाज। ये साहब है आए हमारे एक आलिम साहब के पास, कहा मुझको अरबी सिखा दीजिए, ये है इनकी अरबी का, अरबी सिखा दीजिए। आए पहले इनका हजरत कलम की अरबी बता दीजिए, तो उन्होंने कहा अल कलम। अच्छा किताब है, किताब की अरबी बता दीजिए। हजरत ने कह दीजिए अल किताब। अच्छा कुर्सी है, बताइए कुर्सी की अरबी क्या होती है? आपने फरमाया अल कुर्सी। उसकी आंखों में चमक पैदा हो गई, बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ शादा पढ़ना चला गया वहां से। एक हफ्ता गायब रहा। हजरत से एक दिन किसी मोड़ पे मुलाकात हो गई, कहा तुमने तो अरबी सीखने का सिलसिला शुरू किया था, एक हफ्ता से तुम कहाँ गायब थे? कहा हजरत मैंने तो अरबी सीख ली, एक ही दिन में आपने सारा गुण हमें बता दिया। कहा वो क्या? कहा मैं जान गया हूँ कि जिस लफ्ज पे अल दाखिल कर दिया जाए इस्लाम, वो लफ्ज अरबी बन जाता है। तो हजरत ने पूछा कि बताओ भैंस की अरबी क्या है? वो कहता है अल भैंस। अच्छा बता गधे की अरबी क्या है? कहा अल गधा। कहा कुत्ता की अरबी बता दे, कहा अल कुत्ता। कहा रे जालिम तू गधा सुअर कुत्ता ही रह जाएगा, तुझे अरबी कभी नहीं आएगी। ये इनकी अरबी का हाल। हजरत ने बयान किया था कि हमने मुसाफा किया तो एक हाथ बढ़ाया, एक हाथ। अरे दूसरा क्यों नहीं तुमने बढ़ाया? तो इसमें जरासीम है, बैक्टीरिया इसके अंदर लगा हुआ है। इतने बड़े जालिम कहते हैं कि हम अहले हदीस हैं। अहले हदीस नहीं, ये असले खबीस है, और तहकीक की जबान में ये मुनकिरे हदीस हैं, दुश्मने हदीस हैं। कहते हैं कि हम तो बुखारी वाले, बात बात में बुखारी, बात बात में बुखारी है। और मैं आपको बड़ी गारंटी के साथ बता रहा हूँ, सिर्फ चंद किताब के जो रफ़ीदैन वगैरह से मुतल्लिक हैं, आमिल भी जार से मुताल्लिक हैं, सिराज खल्फल इमाम वगैरह से मुताल्लिक है, किताबतों में पतले पतले रिसालों में
انہی چند حدیثوں کو ازبر یاد کر لیتے ہیں اور سنیوں میں فرراٹے کے ساتھ سناتے ہیں تو لوگ مروب ہو جاتے ہیں، یار بہت حدیث ہے، اس کو یاد ہے، بہت حدیث ہے، اس کو یاد ہے۔ یہ ہے ان کی حدیث دانی کا حال، یہ ان کی حدیث دانی کا حال۔ کہا دوسرے ہاتھ میں بیکٹیریا ہے، آؤ بخاری شریف اٹھاؤ جلد 2، بخاری شریف یہاں پہ ہوگی، بخاری شریف جلد 2 اٹھاؤ۔ حضرت امام بخاری نے ایک باب قائم کیا، باب المصافحہ، یہ مصافحہ کا بیان ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، مصافحہ کا بیان ہے۔ کیا لکھا ہے امام بخاری نے اس میں؟ لکھتے ہیں کہ صافہ حماد بن زید ابن المبارک بیدہ، حضرت حماد ابن زید نے محدث زمانہ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا، کہیے سبحان اللہ۔ امام بخاری عقیدہ پیش کر رہے ہیں اور مسئلہ بتا رہے ہیں، سنت رسول کی وضاحت کر رہے ہیں کہ مصافحہ دونوں ہاتھوں سے ہونا چاہیے۔ یہ ظالم کہتا ہے خود ہی ناپاک ہے، ابھی ہاتھ ناپاک ہو گیا، تیرا پورا وجود ہی ناپاک ہے، تیرا پورا وجود ناپاک ہے۔ اور اسی سے متصل 2-3 سطر نیچے ایک باب قائم کرتے امام بخاری، باب الاخذ بالیدین، باب الاخذ بالیدین، دونوں ہاتھ پکڑنے کا بیان، دونوں ہاتھ سے پکڑنے کا اور قبضہ کرنے کا بیان۔ اس میں کیا لکھا ہے امام بخاری نے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں تشہد اسی طرح سے سکھاتے تھے جس طرح سے قرآن کی تعلیمات دیتے تھے، قرآن کی آیتیں سکھاتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ سرکار نے ہمیں تشہد سکھایا، حال یہ تھا کہ وہ کفی بین کفین، میری یہ ہتھیلی سرکار کے کہ دونوں ہتھیلیوں کے بیچ بھی سبحان اللہ۔ یہ ظالم کہتا ہے ایک ملا دیا تو اوپر نہیں سٹانے کی اجازت ہے، نبی نے سٹایا ہے اور تو کہتا ہے بیکٹیریا ہے، نبی نے نہیں کیا ہے تو ہم نہیں کریں گے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ نبی نے کیا ہے، جو کام نبی نے کیا ہے، امام بخاری نے صفائی اور وضاحت کے ساتھ عنوان اور باب ٹائٹل قائم کر کے دنیا کو بتایا ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہمیں حدیث ہے، بخاری پہ چلنے والے ہیں، اس کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ اب آپ بتائیے یہ اہل حدیث ہے کہ دشمن حدیث ہے؟ فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ اہل حدیث ہے کہ دشمن حدیث ہے؟ کہاں بیکٹیریا جو ہے لگ جاتا ہے، بیکٹیریا جو ہے، میں کہتا ہوں یہ بیکٹیریا اتنا خطرناک نہیں ہے، اس بیکٹیریا سے جان خطرے میں پڑے گی اور وہابیت کے بیکٹیریا سے ایمان خطرے میں پڑے گا۔ تیرا بیکٹیریا اس بیکٹیریا سے زیادہ ہے۔ اب آئیے اصل موضوع پہ آتے ہیں، لیکن بہت اختصار کے ساتھ انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر اپنی گفتگو میں ختم کر دوں گا۔ سلام پہ اٹھے ہمارے خان صاحب یہاں بیٹھے تھے، لیکن تنہا چکے تھے اس لیے اس کو اچھا نہیں لگا، ہم نے اتار دیا۔ خان صاحب یہاں پہ ہیں؟ ہے خان صاحب؟ کہاں ہے خان صاحب؟ ہاتھ اٹھائیے اور یہاں قریب آئیے تاکہ تفصیل ہو سکے۔ انہی کو مہرا بنایا تھا، انہی کے دروازے پہ پروگرام کیا تھا، ان کو مہرا بنایا تھا، انہوں نے دنڈ سوالات بھی دیے تھے، جو لوگ رہے ہوں گے جانتے ہوں گے، انہی کو مہرا بنایا تھا۔ کہا کہ کیا انہوں نے کہا کہ آپ لوگ سب کرتے ہیں، لیکن یہ بتائیے آخر میں صلاۃ و سلام کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ اچھا سوال کیا تھا انہوں نے، باپ دادا نے کیا، علماء نے کیا، زمانے سے چلتا چلا آیا، خواجہ صاحب نے کیا، غوث اعظم نے کیا، امام اعظم نے کیا، سب نے کیا اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے زمانہ میں کیا، لیکن آپ لوگ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ لوگ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ کہا خان صاحب یہ بتائیے، یہ بار بار یا نبی سلام علیکم، یا رسول سلام علیکم، یا حبیب سلام علیکم، صلوات اللہ علیہ کے بار بار یہ سلام پڑھنا، بولیے خان صاحب یہی انداز تھا کہ نہیں؟ بار بار جو ہے کہا کہ اچھا خان صاحب ہم آپ کے گھر آئے، آپ سے ایک بار ملاقات ہو جائے، کہوں خان صاحب السلام علیکم، پھر ادھر سے گھوم کے آؤں کہوں خان صاحب السلام علیکم، پھر ادھر سے گھوم کے ٹہل کے آؤں کہوں خان صاحب السلام علیکم، پھر ادھر سے ٹہل کے آؤں کہوں خان صاحب السلام علیکم، بولیے آپ کو اچھا لگے گا برا لگے گا؟ بولیے برا لگے گا کہ نہیں؟ یہ کہلوایا کہیں سے وہاں پہ اسٹیج پر تھے یا جلسہ گاہ میں، کیونکہ ویڈیو نہیں تھا، آڈیو تھا، بولیے یہی کہلوایا تھا نا؟
कहाँ बोलिए ताकि लोग जाने और देखें और समझे कि ये जालिम कितने बड़े झूठे हैं, कितने बड़े अय्यार, कितने बड़े मक्कार हैं ये लोग, कितने बड़े अदाकार और कितने बड़े फनकार हैं, ताकि आप देख लें, समझ लें। और फिर ये जालिम जब आपके यहाँ आए तो उनकी ऐसे ही मरम्मत करें जैसे खटिया के अंदर से खटमल को निकाल करके आप स्वागत करते हैं, इस तरह से करें। वो कहते हैं कि हम अहले हदीस, हमें हदीस की हवा भी मुझे नहीं लगी है। मिशकात की हदीस है, हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, नबी हुरैरा तानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा लक़िया अहदुकुम अख़ाहु फ़लयुसल्लिम अलैहि। आका फरमाते हैं कि जब तुम किसी अपने दीनी भाई से मिलो तो उसको जरूर सलाम करो, सलाम करो। अच्छा, सलाम तो हो गया एक बार, अब आगे देखिए आका फरमाते हैं फ़इन हालत बैनहुमा शजरतुन औ जिदारुन औ हजरुन सुम्मा सल्लिम अलैहि। आका फरमाते हैं एक बार कर दिया खान साहब अस्सलाम वालेकुम, फिर मैं इधर से आया माइक से बोल के तो सरकार फरमाते हैं फिर कहो अस्सलाम वालेकुम, फिर मैं काम मिलने से हमने किताब ये उठा दी, फिर मुलाकात हो हमने कहा खान साहब अस्सलाम वालेकुम, सरकार फरमाते हैं एक बार सलाम कर दिया लेकिन एक तरफ से घूम करके फिर सामना हो गया अस्सलाम वालेकुम, कोई पत्थर बीच में हायल हो गया, फिर मुलाकात हो गई अस्सलाम वालेकुम, कोई दीवार बीच में आ गई, फिर दूसरी तरफ से मुलाकात हो गई, सरकार फरमाते हैं कहो अस्सलाम वालेकुम। आका फरमाते हैं अस्सलाम बैनकुम, सलाम आपस में खूब फैलाओ, तहाबबतुम, मोहब्बत का दरिया बहेगा। और ये जालिम कहता है कि नफरत पैदा होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बोलिए सलाम बार बार करना ये मोहब्बत का जरिया है कि नफरत का जरिया? लेकिन ये जालिम कहता है महले हदीस है, असले हदीस है, जो हदीस का इनकार कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं हदीस का इनकार। इतना ही नहीं, अच्छा जब सलाम करते हैं बार बार तो सरकार को सलाम बड़ा बुरा मालूम होता है, बार बार सलाम करना। जैसे आपको तकलीफ होती है ऐसे सरकार को भी सलाम बार बार करेंगे, नागवार गुजरेगा। बिल्कुल आखिरी बात मैं पेश कर रहा हूँ, बातें तो बहुत ज्यादा हैं और इतनी हेडलाइन मेरे पास है, इसी तरह में मैं गुफ्तगू करूँ तो खुदा की कसम मैं कहता हूँ अगारे फजर तक मैं बोलता हूँ। इतनी हेडलाइन मेरे पास है। बार बार सलाम करने से सरकार नाराज हो जाते, आए हाय सरकार नाराज हो जाए। अल्लाह ने कैसा इंतजाम फरमाया है, उठाइए मिशकात शरीफ की हदीस है, मुहद्दिस दारमी ने भी रिवायत किया है, बयान किया है। हजरत काबे अहबार ये बड़े जबरदस्त यहूदी आलिम थे, आसमानी किताबों के बहुत बड़े आलिम थे, माहिर थे, फकीह थे, लेकिन अल्लाह ने तौफीक बख्शी नबी के जमाने में मुसलमान ही नहीं हुए बल्कि सहाबी रसूल बन गए। हजरत काबे अहबार क्या कहते हैं, इन्ना काबन दखला आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। एक दिन हजरत काब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बारगाह में आए तो वहाँ पे क्या हुआ, फ़ज़करू रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सरकार का जिक्र खैर होने लगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। पता चला सहाबा जहाँ बैठते थे सिर्फ नमाज रोजे की बात नहीं करते थे, अज़मत मुस्तफा के चर्चे भी छेड़ा करते थे। ये सहाबा का तरीका था। करू रसूल अल्लाह। तो हजरत काब ने क्या कहा कि नमाज में इतनी रकअत है 16 वक्त में और इतने अरकान है, इतनी शराइत है, इतने आदाब है, इतने मुस्तहबात है, इतने सुनन है। क्या कहा काब ने, जरा सुनिए। हजरत काब अहबार कहते हैं मा मिन यौमिन यतलू इल्ला नज़ला सबऊन अल्फम मिनल मलाइका। हजरत काब अहबार कहते हैं कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता है मगर उस दिन में आसमान से अल्लाह ताला 70,000 फरिश्तों को जमीन पर उतारता है रोज़े रसूल पर। 70,000 फरिश्ते अल्लाह ताला रोजाना सुबह तुलू होते ही अल्लाह ताला 70,000 फरिश्तों को भेज देता है। अच्छा कि वो क्या करते हैं, तबलीग करते हैं। अरे बोलिए क्या करते हैं, देखिए हदीस रसूल से पूछिए क्या करते हैं। आप क्या करते हैं, हत्ता यहुकू बिक़ब्रि रसूलिल्लाह, 70,000 फरिश्ते आते हैं और रोज़े रसूल को चारों तरफ से घेर लेते हैं।
अरे अरे सुन्नत भी क्या करते हैं? आप मज़ारों पे जाके क्या करते हैं? यही करते हैं ना, वहाँ सजदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वहाँ मज़ार पे चढ़ करके नहीं। तो देखिए फरिश्ते क्या कर रहे हैं, रौज़े रसूल को घेर लेते हैं 70,000 फरिश्ते बिक़ब्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वयज़रिबूना बिअजनिहतिहिम, अपने परों को फड़फड़ाने लगते हैं, मारे खुशी के। अच्छा, उसके बाद हल्का बना के घेर लेते हैं, तो फिर क्या करते हैं जरा सुनिए, ईमान ताज़ा कीजिए और वहाबियों का मकरूह चेहरा देखिए। वयुसल्लूना अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 70,000 फरिश्ते क्या पढ़ते हैं? सलवातुल्लाह अलैहि, सलवातुल्लाह अलैहि, सलवातुल्लाह अलैहि, या नबी सलाम अलैहि, सलवातुल्लाह अलैहि। 70,000 फरिश्ते सुबह से पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा जनाब, कब तक पढ़ते रहते? अच्छा, नबी को खराब नहीं लगा? मरदूद तो कह रहा है कि नफरत लगती है, नाराजगी बढ़ती है। 70,000 फरिश्ते वहाँ जमघट लगा के, भीड़ लगा के पढ़ रहे हैं। अच्छा, सुबह से शुरू किए हैं, कब तक इनकी ड्यूटी रहेगी? हत्ता इज़ा अमसौ अरजू। अरे आप घबरा नहीं रहे हैं? मैं देखिए जबरदस्ती मैं तकरीर नहीं करता हूँ, मेरी आदत है, और मैं जान रहा हूँ कि बेअदबी हो रही है, हजरत तशरीफ फरमा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये हदीस मुकम्मल कर लो। कहिए कर लूँ? यहाँ तक कि जब शाम हो जाती है तो ये 70,000 फरिश्ते जमीन से फिर आसमान की तरफ चले जाते हैं। फिर क्या होता है? वहबत मिसलुहुम फसनऊ मिसल ज़ालिक। फिर आसमान से शाम को 70,000 फरिश्ते, नए फरिश्ते आते हैं, रौज़े रसूल को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जोश ईमानी में, मस्ती के आलम में कहते हैं, या नबी सलावतुल्लाह, या नबी सलाम अलैह, सलवातुल्लाह अलैह। ये सिलसिला चलता रहेगा। हर सुबह को 70,000 फरिश्ते आते हैं, हर शाम को 70,000 फरिश्ते आते हैं। और आज यहाँ आप रतनगंज के जलसे मुनाजरा में बैठ के या नबी सलाम अलैह पढ़ रहे हैं, और यहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त भी रौज़े रसूल पे 70,000 फरिश्ते पढ़ रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि। अच्छा, ये सिलसिला जनाब कब तक चलेगा? हत्ता इज़ा शक़्क़त अनहुल अर्ज़ खरज फी सबईन अल्फ़म मिनल मलाइकत यज़ुफ़ून। ये सिलसिला उस वक्त तक चलेगा जब जमीन फट जाएगी, कयामत आ जाएगी, सरकार रौज़े रसूल से निकलेंगे और फरिश्ते दुल्हन की तरह से सजा सजा के मैदान महशर में ले जाके मकामे महमूद में पाएंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। मुतालबा यही होता है ना कि अहले सुन्नत ये हदीस पर अमल नहीं करते हैं। उस जालिम ने यही किया अपनी तकरीर में, कहा हमको कहा गया है कि मोहम्मदी नमाज पढ़ें, और ये लोग हनफी नमाज पढ़ते हैं, शाफई नमाज पढ़ते हैं, मालिकी नमाज पढ़ते हैं, हम्बली नमाज पढ़ते हैं। आप जरा सोचिए, नबी के मुकाबले में जो नबी के खादिम है, गुलाम है, उनको नबी के मुकाबले में खड़ा कर दिया। इन चारों इम्मा के बारे में उस जालिम ने उस जलसे में जो किताब बनवाई थी, मेरे पास मौजूद है, मैं लेकर के आया हूँ। उस किताब में उसने चारों इम्मा के बारे में कहा है कि हदीस से जर्रा बराबर हटने को उन अइम्मा ने, बुजुर्गों ने हलाकत और बर्बादी करार दिया है। तो जो चारों अइम्मा हदीस से हटने को बर्बादी करार देते हैं, तो तुम कैसे इल्जाम लगाते हो कि हदीस के खिलाफ उन्होंने कोई फैसला किया होगा? और नबी के मुकाबले में तुमने चारों इमामों को खड़ा करके शातिराना चलकर सीधे साधे मुसलमानों को वरगलाने और पहचानने की तुमने कोशिश की है। इसलिए आज हमारे उलमाए अहले सुन्नत ने, अवाम अहले सुन्नत ने यहाँ इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुजाहरा करके ये साबित कर दिया कि ऐ वहाबियों, अगर फिर तुमने कभी सरकशी करने की नापाक जसारत की, तो इसी नारायणी के साथ तमाम वहाबियों को इंशाअल्लाह हम
زندہ درمور کر الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.